جماعت بیٹھ جائے. شہر والی کی ترتیب کی کتاب کے ہاتھوں میں شہر والی کی ترتیب کی کتاب ہے. پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آئے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کام محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا. سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو، ہم اس لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئے ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراستی سے باز نہیں رہے. ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال بڑھائیں. آمین. ہمارے منجی خدا اپنی یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے میرے اٹھانے والا بہت سے دبے ہوئے لوگ، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گنہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قائل مطلب خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کی سبب ہم سب سے جو اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے. وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین.
खुदा उनकी हम लोग तारीफ करेंगे। सियालकोट के रंजन की जो किताब ज़बूर नंबर 18 कहेंगे कोई साथ मिलकर आपके ऊपर वक्त खुदा के मैनू रब बचाओ। Okay.
लेकिन आज का ये दिन जो अक्टूबर के महीने का आखिरी इतवार है, कल से हम नवंबर के महीने में दाखिल होंगे, जिसमें हम तैयारी करते हैं और फिर नवंबर के एंड में हम एडवेंट सीजन शुरू कर देते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसलिए हम गुजरे साल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, गुजरे महीनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। जो लोग दुआ नहीं करते, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अपना मुंह दुआ के लिए खुला करें। ये खुदा का वादा है, मेरा नहीं है। ये तो अपना मुंह खोल लड़ाई झगड़े के लिए, हम तो सुना के लिए दुआ के लिए, तो मैं फिर इसे बरतों से बरतूंगा। इसलिए आजादी है, आप उससे कोई चंद अल्फाज शुक्रगुजारी करें। हमारे घरानों में, कलीसियों में सलामती बख्शे खुदावन, इस मोहब्बत और शफ़क़त के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। जबकि दुनिया में खुदावन इतनी बुलाए हैं, इतनी वबाएं हैं, मरी पड़ी हुई है खुदावन, बहुत ज़्यादा खुदावन तू जानता है कि घर घर में मुश्किल मुसीबत है, लड़ाई झगड़े हैं, इब्लीस जोरों पर अपना काम कर रहा है। खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, अपनी कलीसियों पर अपना शफ़क़त वाला हाथ बढ़ा, घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, नौजवान बेटे बेटियों की खास मदद कर। जबकि दुश्मन शैतान फाड़ने पे आया हुआ है और ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ रहा हूँ। हाँ खुदावन, वो तो तेरे लोगों के पीछे ही लगा रहता है और उनको हर तरह से हरासा करता और मुश्किल और मुसीबत में लेके आता है। खुदावन तेरे लोग जो तेरे साथ पैशन के साथ चलते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं, उन्हीं को ये इब्लीस जो है फाड़े खा रहा है, उन्हीं को मुसीबत में ला रहा है। लेकिन अरे बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तो अपने लोगों को कभी भूलता नहीं है, बल्कि हर वक्त तेरी निगाहें तेरे लोगों पर जमी रहती हैं और उनकी दुआओं पर तेरे कान लगे रहते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करती हूँ सेंट जॉर्ज कलीसिया के लिए, जिन पर खुदावन तेरा मोहब्बत और गहरा हाथ जो है, शफ़क़त वाला हाथ जो है, बड़ा हाथ बढ़ा हुआ है। मिन्नत करके खुदा एक एक मेंबर पर, एक एक घराने पर और पूरी सेंट जॉर्ज कलीसिया और तमाम कलीसियों के लिए खुदा जो उनके पाकिस्तान में जाग बस रही हैं, खुदावन तो से इंतजार करती हूँ सफर रहम फरमा और अपनी हजूरी में आने का और खुदा पूरी वफादारी के साथ चलने का भारी फजल दे। सबको ब्लेस कर ताकि तेरी रूह से मामूर होकर सच्चाई के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ तेरे साथ चले और दुश्मन की कुदरत पर यीशु नासरी के नाम से फतह पाते चले जाए। खुदा हम सबको ब्लेस कर बरकत दे, ईमान की मजबूती बख्श दे, कायम और दायम रहने का फजल दे, अपनी मोहब्बत में बढ़ा, अपनी जान और पहचान में बढ़ने का फजल दे, पाकीज़गी और रास्तबाजी में बढ़ने का फजल दे, ताकि दुश्मन की कुदरत पर हम फतह पाते चले जाएं और तेरी आमद के लिए तैयार रहे। खुदा वाइट एक माँ बच्चों पर, बहन भाइयों पर, बच्चों पर तेरा बड़ा हुआ हाथ मांगती खुदा, सबको ब्लेस कर बरकत दे, स्मार्ट फोटो गले बच्चों, ताकि और बेहतर तौर से तेरी हमदस्ताई प्रोसेस को लीड कर सके। साजो वाजों पर तेरा गहरा मसा छाया रहे खुदा, पूरी इबादत में हमारा शामिल हाल हो और खुदा हम बड़ी मदद कर। जो रास्ते में नहीं आने का इरादा रखते हैं, सलामती के साथ आए और तेरी कलीसिया के साथ मिलकर खुदा तेरी हम करें, तेरी प्रस्तुत करें, तेरी तारीफ करें, तेरा शुक्रिया जाना सके खुदा। तेरे खादम को, उनकी अहलिया मोहतरमा को और उनके घराने को खुदा खास याद करती हूँ। अपने लोगों को और ज़्यादा अपने जमाल पर इस्तेमाल कर, वाजिद साहब को खुदा और ज़्यादा आज बड़ी रूह सच्चाई के साथ गहरा मसा देकर अपने जलाल पर इस्तेमाल करना। ये सब कुछ तेरे प्यारे मुकद्दस जलाली और खुदा नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन।
सैलरी का सहीफा 55 बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत। दोबारा बता रहा हूं, इस सैलरी का सहीफा 55 बाब 55 चैप्टर पहली आयत से 7वीं आयत। पुरानी बाइबल है जो आपके सामने पड़ी है, उसका सफर नंबर 705 है। जो आपके सामने बाइबल पड़ी है, पुरानी बाइबल सफर नंबर 705, नई बाइबल में सफर नंबर 903, इस साल का सहीफा 55 बाब। अगर आप में से पढ़ना चाहता हो, जो नहीं पढ़ता ना वो हाथ दिखाए, जो हर दफा पढ़ते हैं वो ना हाथ दिखाए, जो नहीं पढ़ते वो हाथ दिखाए। खुदा का कलाम पढ़ा करें। शाबाश, चले पढ़े आप। 55 बाब है, अभी खोल के देख लें, पढ़ लें। फिर हम कुलिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, 3रा बाब 12 से लेके 17 आयत तक, और उसका दूसरा भी कुलिसियों 3रा बाब 12वीं आयत से 17 आयत। लोग इसको कहते हैं कुलिसियों, ये कुलिसियों है। 3रा बाब 12वीं आयत से 17 आयत, पुरानी बाइबल में सफर नंबर 195, 195, और नई बाइबल में सफर नंबर 235। कलाम मुकद्दस की तिलावत लड़कियों में से कोई लड़की करे, अपना हाथ दिखाए। शाबाश, सब पढ़ करके बैठे, चले भाई ये लड़की है, चले आप ही पढ़ लें। अब इसके बाद देखेंगे इस पर का नंबर आ जाना, ठीक है। वो पढ़ेंगे मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, मुकद्दस मरकस का जीवी बयान 12वां बाब 28वीं आयत से 34वीं आयत। जिन्हें मुकद्दस लिखावत आमतौर पर तो खाली बागी हैं, वास्तव में वो पढ़ते हैं। सफर नंबर 46 पुरानी बाइबल, नई बाइबल में सफर नंबर 57 मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी इंजील 12वां बाब 28वीं आयत से 34वीं आयत तक। आज सब हमारी नसीहत के लिए ये तीनों हवाले नोट करें। आज का दिन जो है, पूरी दुनिया में ये हवाले जो पढ़े गए हैं, ये खुदावंद के रहम के, फजल के। और आज का दिन मुकद्दस बाइबल का दिन, इसलिए हवाले गौर से निकालने और इनके बारे में खुदावंद के कलाम को जरूर तसल्ली के साथ। शादी के बारे में याद है, पहले जब पाकिस्तान यूनाइटेड हुआ 4 मिशनों के साथ मिलकर, मेथोडिस्ट, एंग्लिकन, लूथरन और स्कॉच, कल शाम 5 बजे वार्स रोड चर्च में शुक्रगुजारी की इबादत है। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहें, आप जरूर उस इबादत में शरीक हों। मैं भी जाऊँगा 5 बजे कल शाम। 51 ईयर्स सेलिब्रेशन है चर्च ऑफ पाकिस्तान। अगला इतवार हमारी शादी का 30वां साल। कितने साल हो गए? 30 साल। आज उन सबको हम मुबारकबाद देते हैं जिनकी शादी की सालगिरह और बर्थडेज हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और अगले इतवार हम आप सबकी खिदमत में शुक्रगुजारी के तौर पे केक लाएंगे, आप सबको चाय का इंतजाम हम बाहर करेंगे, क्योंकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं कि खुदा ने हमारी शादी के 30 साल मुकम्मल किए और खुदा ने बड़ी बरकतें भी दी। आप लोग दुआ करते रहे मेरी बेटी के लिए। बहुत सारे लोगों ने, आप सब ने बहुत दुआएं की और हम शुक्रगुजारी करना चाहते हैं अगले बार इस तौर से भी कि वो बहुत अच्छे नंबरों में वहाँ पे पास हुई है स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में।
اس نے डॉक्टरेट जो उसकी अपना फील्ड है उसमें मास्टर किया उसने, इसलिए हम ये आपकी दुआओं के वसीले से है। हम दूसरे सारे बच्चों को भी याद करते हैं जो बेटियां बेटे नौजवान बाहर हैं पढ़ते हैं, खुदा उन्हें भी कामयाबी सरकरार करे। आज वो आइए नायाब को भी हम फूलों के बुके देंगे। इसने BSN पास किया है और मिसेस नेल्सन अपने कलाम भी पढ़ने आते हैं, आज लगता है आज के लिए आप आइए, हम आपको फूलों के बुके पेश करना चाहते हैं कि बर्थडे है जी। वो लिश्वाइया शहजादी की बेटी ना, आज मैंने बाहर देखा उसको शादी की पुकार से, आ जाए लिश्वा आपके हाथों से फूलों के बुके दूंगा, ठीक है, शाबाश। क्वायर की मेंबर है हमारी, इसलिए हम सब चर्च की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। तालियां। थैंक यू। कहते रहे मुझे नहीं परवाह, अच्छी रवायात कायम करें, एक दूसरे की खुशी में शरीक हों और अच्छी रवायात को ना छोड़ें जो आपके खानदानों में घरों में शख्सी जिंदगी में है। अपनी अपनी इस्लाह कर लें, दुरुस्तगी कर लें। हम दूसरों को दुरुस्त करते रहते हैं। और आपके पास ये अख्तियार नहीं है कि दूसरों को दुरुस्त करें, अपने आप को ना करें। ये अख्तियार है कि मैं और आप अपने आप को दुरुस्त करें। इंतखाब के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, हमारी आवाज़ें पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं, इसलिए ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। जो लोग साथ में जाते हैं हम इनकी भी शुक्रगुजार हैं। हम तो सुना के लिए जो हाथ इस्तेमाल होते हैं, आवाज़ें गले इस्तेमाल होते हैं। सो आज का दिन इस्लाह का दिन, कौन सा दिन है? तो किसकी इस्लाह करनी है? दूसरों को दुरुस्त नहीं करना, अपने आप को करना है। मेरी आपकी ज़िंदगी में जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, अच्छी आदतें, उनको नहीं छोड़ना। हमने कई चीज़ों को छोड़ दिया, मैं भी इसमें शामिल हूँ। अब आप बर्थडे भी उंगलियों के साथ करते हैं, मुंह के साथ नहीं करते, है ना? उंगली इस्तेमाल करते हैं और लिख देते हैं जी हैप्पी बर्थडे, मुंह का इस्तेमाल नहीं करते। मिला करते एक दूसरे के साथ। फिर शाहरुख की भी बर्थडे है, उसको भी मुबारकबाद देते हैं और सारे बच्चे हैं। बच्चे संडे स्कूल की ऊपर जाए, मैं वो कोने में 2 बच्चे देख रहा हूँ खेल रहे हैं, जो बड़े लोग उनको बताएं संडे स्कूल ऊपर हो रहा है, संडे स्कूल के लिए ऊपर जाया करें। वालिदैन ख्याल रखिए अपने बच्चों का, बहुत ज़रूरत है बच्चों को सीखने की। मैं कल हम आपस में शेयर कर रहे थे, ये नौजवान नस्ल बुरा बनाए है, जो मेरी आपकी पुश्त है ना, सिर्फ हम वो लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम करते हुए डरते हैं। आने वाली पुश्त जो है ना, वो नहीं डरती हमसे। सच्ची बात है, नौजवान हाथ खड़ा करके बता दें, हम अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, डरते हैं, कोई बात कह देना इधर ही बैठे रहते हैं, उधर ही बैठे रहते हैं। लेकिन आज का नौजवान, आने वाली नस्लें, वो पेरेंट्स से डरने वाली नस्लें नहीं होगी, वो डराने वाली होगी। इसलिए बच्चों की तरबियत सही करें, अपने आप की इस्लाह करें, बच्चों की भी इस्लाह करें, ताकि कलीसियाओं में भी अमन हो, सुलह हो और सलामती हो। आज 2 बजे मेमोरियल सर्विस है शालूम चर्च में, मिसेस एग्नेस बूटा। अगर आप में से जो लोग उस मेमोरियल सर्विस में जाना चाहते हो, ज़रूर वहाँ जाएं। खसरा और रबेला दोनों बीमारियाँ हैं, इनकी वैक्सीनेशन शुरू हो रही है 15 नवंबर से 27 नवंबर तक। 9 तक 15 साल के बच्चे जितने भी हैं, इन सब के लिए ये मौका है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अब तो कोरोना की वैक्सीनेशन भी ये बच्चे करवा सकते हैं, ताकि इन अमराज से, इन वबाओं से बचा जा सके। हम अपने भाई नई बरकत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दुआओं के वसीले से खुदा ने अपनी पनाह में रखा। खासतौर पर अपने भाई गांधी के लिए खास दुआ करते हैं, उनका ऑपरेशन है। खुदा अपने बंदे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। सबसे पहले चर्च में वो आते हैं
बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चर्च में आकर वो दुआ करते हैं ऊंची आवाज़ में और खुदा की हम वो तारीफ करते हैं। खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम उनके लिए दुआ करें, उनके ख़ानदान के लिए भी। और मौजूदा जो हालात हैं आप सब उससे बाखूबी वाक़िफ़ हैं। रोड बंद है, जीटी रोड, मुल्क में अफरा तफरी है, बेचैनी है। आप ज़रूर दुआ करें कि खुदा हमारे मुल्क में अमन, सुलह और इस्लामती लाए। एक बच्ची की आज बर्थडे है, एंजल उसका नाम है। और आने वाले दिनों में आप सोशल मीडिया पे भी और इधर उधर भी देखेंगे जो मसीही ड्रामे होंगे। एंजल्स फरिश्तों का ख़ास उसमें किरदार होता है। तो पहले हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। आज का पहला लफ्ज़ यशायाह नबी का सहीफ़ा 55 वाला। बेटा जल्दी आए सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेइज्जत और बेकीमत खरीदो। तुम किसके लिए अपना रुपया? उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मोहब्बत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तुम्हारी जान जिंदगी रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। देखो, मैंने उसे उम्मतों के लिए दुआ मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमानरवा। देखो, तो एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती थी। खुदावंद तेरे खुदा और इसराइल के कदूस की खातिर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा है। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब रखो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फेरे, और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए दुआ से बरकत हो। आमीन। आज का दूसरा वेद बस खुदा की बरकतीतों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और इल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पट्टा है बांध लो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत। आमीन। आगे
मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब 28वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब 28वीं आयत से। और फ़कीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? जो तुमने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब तो अपनी कुर्बानियों और ज़बियों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उसने कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं, और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जरूरत ना की। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और चले जाने बाद इसकी बरकत हो। आमीन। जो आसमान ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा की सृष्टि पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलम से बेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मासूम नहीं बल्कि मौजूद, उसका बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुछ चीज़ बनी और हमारे के लिए हमारे सबने बोल रहे हैं और उसकी कुदरत से से मुजस्सम हुआ और इंसान उसके ऐप में हमारी मशहूरी हुआ, उससे बताया और दफन हुआ और तीसरे दिन आप फरिश्तों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, बाग के रहते बैठे हैं, वो जलाल के साथ जन्नतों और बंदों की इबादत के लिए फिर आने वाला है, उसकी सर पर नफरत होगी। और मैं ईमान रखता हूँ उस पर जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादर है, उसके बाप और बेटे के साथ दस्ते शुक्र अजीम होती है। वो नबी की ज़बान बोला, मैं एक पाक आम सुनी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत आइंदा जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से इंजil को जो बरकत की दुआ देते हैं, तेरे खादिम होते हुए वालिदैन को उनकी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से सर अंजाम देने के लिए अक्ल, दानिश और फहम अता फरमा। आज का कलाम हम सबके लिए बरकत का बाइस बने। अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम ला, अपने लोगों को आने वाले वक्त में ढेरों खुशी न दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से कि माइक बैठ जाए। उनको छिड़का, यीशु को देखकर खफा हुआ और उससे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसी ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने अपनी गोद में लिया, उन पर हाथ रखकर उनको बंद कर दी। ये छोटे बच्चे सवाल, ये छोटे बच्चे और हम सब खुदा की मलकियत हैं। पाक बपतिस्मा के वसीले से खुदा इन बच्चों को ईमानदार के घराने में शामिल करता है, ताकि वो बतौर मसीह के एजाज़ खुदा की बादशाही की वारिस बढ़ते जाएं। ये आप लोगों का फर्ज है, हक भी है। जब आप अपने बेटी को, एंजल को बपतिस्मे के लिए पेश करते हैं, तो खुदा यीशु की फरमाबरदारी का इकरार करें, हर किस्म की बदी को तरक करें। इसलिए हम खुदा के खादिम होते हुए आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि आप यीशु की तरफ रजू करते हैं? शाबाश।
کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کو اور ہر قسم کی بت پرستی، پیر پرستی اور توحید پرستی کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آپ عہد کرتے ہیں کہ آپ اس بچی کو خدا ان کے گھر میں لایا کریں گے؟ آپ خدا کی پاک مرضی حکموں کو فرما برداری کے ساتھ مانیں گے؟ ہم دعا مانگے۔ خدا آسمانی باپ، تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے خادموں کے ساتھ مل کر خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے اس پانی کے لیے اس سے دعا کرتا ہوں کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنی برکت اس پر نازل فرما، تاکہ اس وقت جو کچھ ہم خدا کی یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، اور اینجل جس طرح خود مقامت میں بڑھے تیری پہچان میں بڑھتی چلی جائے۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے اینجل کو کپڑے بھی اینجلس والے پہنا دیے بھائی۔ اینجل ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام سے تیرے ماتھے پر صلیب کی مہر لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا تجھے برکت دے، خدا اپنے چہرے تجھ پر جلوہ کر فرمائے، تجھے دراز عمر دے۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے ہم آج صبح اینجل کو خدا یسوع مسیح کے نام میں اس کے جلوے میں شریک کرتے ہوئے، ایماندار کے گھرانے میں شریک کرتے ہوئے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئے آپ سب پوری کلیسیا کو ویلکم کریں، تالیاں ملا کر۔ ہم اسی ایمان کے تحت خدا کے خادم ہوتے ہوئے اینجل کو اس کے والدین کے سپرد کرتے ہیں تاکہ وہ بڑی وفاداری کے ساتھ اس کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کریں۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے چلے اب اچھی ہے، خوش ہو گیا۔ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ آج کا یہ دن آپ سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے اور خاص طور پر اصلاح کا سبب ٹھہرے۔ جس طرح ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد اپنے جسم کا، اپنی باڈی کا ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کے بدن کے سارے جو خاص آرگنز ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح 1 سال کے بعد آج کا دن آتا ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی اصلاح کریں۔ بہت خامی ہے مجھ میں بہت باتوں میں بہت کمزور ہوں، آپ بھی ہوں گے۔ اس کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کا دن رحم کا دن ہے۔ جو حوالہ سب سے پہلے پڑھا گیا وہ ہے یسایا نبی کا صحیفہ۔ یسایا خدا کا ایسا خادم جس نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسیح پیدا ہوگا اور کمواری سے پیدا ہوگا، اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی 750 سال پہلے یہ پروفیسی کر دی گئی اور پوری ہوئی۔ اور اسی خدا کے خادم نے یسایا نبی نے کہا کہ حالات خراب ہیں، بدحالی ہے، لوگ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن خوشحالی آ جائے گی۔ خدا آپ پر رحم کرے گا اس لیے کہ وہ رحیم و کریم خدا ہے۔ لیکن لوگوں سے خدا کے خادم نے درخواست کی، دیکھیں کیا ہے درخواست ہے، 55 باب کھولے۔ میں یہ تینوں حوالے بغیر کھولے ان پہ بات آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کھولیں یہ حوالہ تاکہ آپ کو پتا چلے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسی حصے میں لکھا ہوا ہے۔ 55 باب جو حوالہ پادی صاحب نے پڑھا، غور سے اس کو دیکھ لیں، سن لیں۔ میں آپ کے ساتھ چند باتیں اس سے کروں گا۔ میں نے اس لیے کہا ہے
کہ آج اصلاح کا دن اور خدا کے رحم کا دن، کیونکہ خدا کا بندہ کہتا ہے سینٹ جان سے لوگوں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں سب پیاسوں پانی کے پاس ہیں۔ ہمارا دستور فرق ہے، ہماری گنگا جو ہے الٹی بہتی ہے، یہاں پہ دعوت دی گئی ہے جو پیاسے وہ پانی کے پاس آ جائے، ہمیں اس کو جانا پڑے گا پانی کے پاس۔ ہم کہتے ہیں پانی ہمارے پاس آ ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ آج کے نوجوان ان کو کہے نا ذرا، وہ کہتے ہیں ادھر ہی دیتے، کھانا کھا رہے بھائی آ جائے ٹیبل پہ، نہیں ادھر ہی دیتے۔ پیاسا شخص کا مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ضرورت اس کو ہے، اس کو اٹھ کے جانا چاہیے۔ یہ تکلیف معیار آپ آج کل نہیں کرتے، میں موجودہ دور کی بات کرنے لگا ہوں۔ اس وقت بھی اس نے کہا آپ پیاسے ہیں، پیاس آپ کو ہے، آئے، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی آ جائے۔ ایک خدا کی طرف سے کھلی دعوت، جس کے پاس پیسے نہیں آ رہے۔ آج تو آپ پانی بھی مول لے کر پیتے ہیں، منرل واٹر پیتے ہیں، خرید کے پیتے ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ آؤ مول لو، کھاؤ، سنو میری بات، سنو، شرما ہو، آؤ میں دودھ بے سر بے قیمت ہوں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ چارجز نہیں ہے، کچھ بھی چارجز نہیں ہے۔ آ جائیں، اٹھیں، کوشش کریں، اقرار کریں، اظہار کریں، اعتراف کریں اپنے منہ سے کہ میں ہوں گنہگار، مجھے نجات کی ضرورت ہے، میں پیاسا ہوں، نجات کا، رہائی کا، چھٹکارے کا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تم کس طرح اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں ہے اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو سودہ نہیں خرچ کرتے ہو۔ آج جب ہم کہتے ہیں بچوں کو، یا آپ اپنے گھر میں خاندان کے لوگ بڑوں سے، بچوں سے، جس کے ساتھ بھی بات کریں، کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، فضول خرچی مت کرو، لیکن ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے خرچے خود بڑھائے ہوئے، جن چیزوں کے بغیر میرا آپ کا گزارا ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں رکھتے ہیں، سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے، زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے۔ تم غور سے میری سنو، غور سے، وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ پھر پڑھنے لگو نوجوان سننے، وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ۔ بچے کی کہنے ہیں فاسٹ فوڈ ہی کھانا ہے، برگر کھانا ہے نا، اور ہم کیا کہتے ہیں اچھی چیز کھاؤ، اور دودھ پی لے اور دیسی گھی کھا لے۔ تو بچے کیا کہتے ہیں اس میں سے ہمیں اسمیل آتی ہے، بولے بولے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا کہ وہ چیزیں کھائیں جس سے آپ کو قوت اور طاقت ملے۔ خدا کا کلام پڑھا کریں، سنا کریں، اس سے آپ کو طاقت ملے گی۔ ہم کئی دفعہ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا، کوئی شخص کھانے پینے کے لیے کسی جگہ گیا ہو اچھا کھانا، وہ دکھاتے ہیں سب کو کہ آپ یہ کھا رہے ہیں۔ پہلے لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ خیال رکھتے تھے ایک دوسرے کا کہ شاید آج میرے گھر میں گوشت بنا ہے، ان کے گھر میں نہ بنا ہو۔ وہ نہیں دکھاتے تھے، شور نہیں کرتے تھے، فیس بک پہ لگاتے ہیں، باہر بھی دکھاتے ہیں۔ پھر وہ بھی باہر بھی دکھایا کریں کہ جو آپ کے اندر کمزوری ہے ان کو بھی لگا دیا کریں نا فیس بک پہ، وہ آپ چھپاتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنی ہو تو بڑے آرام سے کرتے ہیں، اور برائی کرنی ہو اونچی آواز سے تاکہ سب سنیں، جن کو نہیں پتا وہ بھی سنیں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے خدا رحیم و کریم ہے، وہ آپ پہ رحم کرتا ہے، آپ بھی ایک دوسرے پہ رحم کریں۔ کان لگاؤ، میرے پاس آؤ، سنو، تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو اب دیا ہے تیرے دعوت کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ بڑی نعمتیں خدا نے آپ کو دی۔ کچھ نعمتیں میرے پاس اور آپ کے پاس سچی ہیں، کچھ نہیں ہے، غور کر کے دیکھ لینا گھر جا کر۔ کچھ چیزیں ہمارے پاس جن کو بیان آپ کہتے ہیں خدا نے بڑی برکت دیتی ہے۔
वो कई दफ़ा वो खुदा ने बरकत नहीं दी होती, वो हमने फ्रॉड से हासिल की होती है। कोई माने या ना माने, आओ मसीह के पास आओ, मेरे पास आओ, खुदा के पास आओ। अब दिया है, दाऊद की सच्ची नेमतें हासिल कर लो। देखो मैंने उसे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर किया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमान रवा बनाया। बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी इज्जत है। कौमों के लिए फरमानवा, पेशवा, रहबर, रहनुमा, पासबान, चरवाहा इसलिए बनाया ताकि लोग बरकत पाए। देख ऐ बनी इस्राएल, देख ऐ सेंट जॉन चर्च लोगों, देखो तू ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती। फिर देखिए, गौर करें इसमें कि आजकल बयान आप क्या कहते हैं। देख तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। हम अपने घर में उन लोगों को बुला लेते हैं जिनको आप नहीं जानते होते, उनकी तालीम से नहीं वाकिफ होते, गलत तालीम है, उनको उनके रवैये से नहीं वाकिफ होते, रिश्तेदारी की वजह से, मुंह मिलाने की वजह से, किसी के कहने पे बुला लेते हैं। देखिए गौर से यहाँ क्या लिखा है, पर इस्राएल की बात हो रही है, कौमों की बात हो रही है। देख तो ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती, तुझे बिल्कुल नहीं जानती थी, खुदा तेरे और इस्राएल के कदूस की खातिर तेरे पास दौड़ी आएगी, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा है। आप लकी लोग बैठने में कि मसीह खुद आपके पास आ गया, अब तुझे जलाल। फिर गौर से सुने, खुदावन तेरे खुदा और इस्राएल के कदूस उसकी खातिर, खुदा का बेटा मेरा रब का निजात देने इस दुनिया में आ गया, और वो बरकतें मेरे पास और आपके पास दौड़ी नहीं, क्योंकि खुदा ने खुद से जलाल बख्शा, किसी इंसान की वजह से नहीं। जब तक खुदा मिल सकता है उसके ताल्लुक, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। और नसीहत क्या है, इस्लाह क्या है, शरीर अपनी राह को तर्क कर दे। शरारत करने वाला शख्स, वो कोई भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, वो सियासी रहनुमा भी हो सकता है, वो मजहबी रहनुमा भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं, सब शरीर शरारत करने वाला शख्स वो खुश हो जाता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता, दौड़े रहता है। आप उसको देखिए, वो भागते रहते हैं, इसलिए उसके अंदर इत्मीनान नहीं है। इसलिए हम जब खुदा के खादिम यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि आप एक दूसरे को दुआ दे कहें, खुदा तुझे इत्मीनान तसल्ली अता फरमाए। इसलिए खुदा के बंदा कहता है कि बुरी राह, शरीर अपनी राह को तरक कर दे, छोड़ दे, बदकार अपने ख्यालों को छोड़ दे, और हम अपने ख्यालात बुरे ख्याल नहीं छोड़ते। वो खुदा की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा हमारे खुदा की तरफ से, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। हमारे मुल्क को कसरत की माफी की जरूरत है, हमारी कलीसियों को कसरत की माफी की जरूरत है। इसकी वजह हम शरारत में सबसे आगे हैं, हम बुरे ख्यालों में सबसे आगे हैं। खुदा के रहम की जरूरत है हमारे मुल्क को, हमारी कलीसियों को, हमारे खानदानों को। फिर देखना, अगर हम अपनी बुरी राह को तरक कर देंगे, अच्छे ख्याल अपने जहन में लेंगे, सोच अच्छी करेंगे, खुदा रहम करेगा, वो कसरत से हमें माफ करेगा, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें। खुदा के जो ख्यालात हैं वो मेरे लिए और आपके लिए क्या है, भले हैं।
خدا بھلا ہے، وہ میری رب کی بھلائی چاہتا ہے، وہ مجھے رب کو سکون امن دینا چاہتا ہے، وہ راحت و تسلی دینا چاہتا ہے، وہ برکتیں دینا چاہتا ہے، وہ خوشحال رکھنا چاہتا ہے، لیکن انسان وہ رستہ طلب نہیں کرتا جس کی وجہ سے خوشحالی نہیں ہوتی۔ خدا کے خیال میرے لیے اور آپ کے لیے بھلے ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالات سے کہیں بلند ہے، اور ہم اس پہ روک ڈالتے ہیں۔ ابھی اسی وقت کر رہے جو کچھ میں کہہ رہی دکھاوے کے لیے کی باتیں ہم کرتے ہیں، اونچی اونچی فقی فریسیوں کو کھولے طرح پڑھا۔ میں اس طرف زیادہ آپ کا دھیان دینا چاہتا ہوں۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، وہاں کیسے لوگ تھے، ان باتوں کی طرف غور نہیں کرتے تھے، برے رستے ترقی نہیں کرتے تھے، خیالات برے تھے، پھنساتے تھے گفتگو کر کے، سوال کرتے تھے یسوع مسیح پر۔ میں اور آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو حوالہ پادری صاحب نے پڑھا ہے 28ویں آیت پڑھ رہا ہوں، مقدس مرکز کا انجیل بیان 12واں باب 28ویں آیت، اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ کتنے احکامات ہیں، ان میں اول کون سا، سب سے بہتر کون سا ہے؟ اور یہ جو فقی لوگ تھے نا، سنیں 3 لوگوں کا بڑا ذکر آیا بائبل میں، فقی، فریسی اور صدوقی۔ اب ان کی خوبیاں دے رہے اور پھر اپنی اپنی اصلاح کر رہے ہیں کہ میں اور آپ ان میں صدوقی کون ہے، فقی کون ہے، فریسی کون ہے۔ اس دور کے یہ لوگ تھے، یسوع مسیح کے دور کے جو فقی لوگ تھے، وہ جو شریعت کے احکامات تھے، جو شرعی امور کا علم رکھنے والے لوگ تھے، ان کو فقی کہتے ہیں۔ دوبارہ احکام جو شریعت میں لکھے ان کو، اور شریعت کا علم بہت ہے ان کے پاس، قیامت پر یقین رکھتے تھے، لیکن مسیح کے خلاف تھے۔ کس کے خلاف تھے؟ کس کے خلاف تھے؟ مسیح کے خلاف۔ آپ کہیں مجھے پادری صاحب آپ تو بہت اچھے ہیں اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں، تو میری کیا عزت رہے گی؟ علم رکھتے تھے یسوع مسیح کے مخالف، قیامت پر یقین۔ پر جو فریسی لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ فریسی قوم میں سے لیڈر لوگ تھے، سن لیں، ہم میں سے بھی ہر بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے۔ فریسی ریاکار لوگ تھے، فقی علم رکھنے والے لوگ تھے، فریسی ریاکار لوگ تھے۔ ایک میں شعر کہتا ہوتا ہوں، پرانا ہو گیا، میرے رب کے ایسی بستی میں ڈیرے ہیں، تیرے منہ میں تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے۔ ایسی بستی میں میرا رب کا ڈیرا ہے، بسیرا ہے، ایسی جگہ پہ ہم رہتے ہیں جہاں لوگ میرے سامنے تعریف کر دیں گے، باہر جا کے میری برائی کر دیں گے، لیکن انہیں برائیاں کرنے دیں۔ مجھے کیوں؟ جو میری رب کی برائی کرتا ہے نا، وہ میری رب کی برابری نہیں کر سکتا، وہ میری رب کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے برائی کرتا ہے۔ خدا نے اسے اسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے فقی لوگ یسوع کے مخالف تھے، علم بڑا تھا۔ فریسی لوگ ریاکار تھے، اور جو صدوقی لوگ تھے وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لیڈر سارے تھے، بڑی چیزاں تھے، چودھری بات بات پہ جتاتے تھے لوگوں میں بڑی چیز ہوں۔ سن لیں، صدوقی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، فقی علم رکھتے تھے، قیامت پر یقین، فریسی ریاکار، اور ان میں سے
गुफ्तगू हो रही थी, एक बंदा निकल गया, यीशु से कहा बता भाई सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, अव्वल यह है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखो। मैं और आप ऐसा नहीं करते, सारी जान से नहीं करते, सारी ताकत से, सारी अकल से नहीं करते। दूसरा ये कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म। आप देख रहे कि कितना पड़ोसियों के साथ हमारी मोहब्बत है, पड़ोसियों के साथ हमारी लड़ाई रहती है किसी न किसी वजह से, हमेशा ऐसे ही है। पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, और खुदा के कलाम में मना किया है। और जिसने कहा मेरा सबसे बड़ा हुक्म यही है, फकीर, जो फकीर शख्स था, जो शरई उमूर से वाकिफ था, जो इल्म रखता था, जो उसी का मुखालिफ था, तो उसने कहा उस्ताद, मान गया, उस्ताद बहुत सुन, तूने सच कहा है कि वो एक ही है, उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल, सारी अकल, सारी ताकत से मोहब्बत रखना, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना, सब सोपनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़ता है। जितने मर्जी हदिये दे दो, जितनी मर्जी देगा पका दो, जितनी मर्जी खराब कर दो, अगर आप पड़ोसी के साथ मोहब्बत नहीं रखते, अगर आप खुदा के खौफ में नहीं रखते, वो आपकी सारी चीजें बेकार है। इस्लाम में लिखा है, मैं आपको नहीं कह रहा। जब यीशु ने देखा कि उसने दलाई से जवाब दिया, तो उससे कहा तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। ऐसा शख्स जो फकीर था, जो उसी का मुखालिफ था, उसने अच्छी और दलाई की बात सुन ली, और जो लोग दलाई की बात नहीं ना सुनते वो बर्बाद हो जाते हैं। कोई भी शख्स हो जो अपना इरादा नहीं बदलता, अपनी सोच नहीं बदलता, अपने बात पे कायम रहता है, डटा रहता है, वो बर्बाद होता है। बर्बाद होने वाला शख्स दनाई की बात नहीं सुनता। इस शख्स ने फकीर है, यीशु जी की बात सुनी, उसके साथ मुतफिक हुआ, और यीशु ने इतनी अच्छी प्यार भरी गुफ्तगू से उसको कहा तूने बड़ी दनाई से जवाब दिया है, इसलिए तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं है, बल्कि तू खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। कितनी बड़ी बात है। नतीजा देखने क्या निकला, सिर्फ दनाई की बात उसने की, बात को सुना और समझा, और फिर किसी ने उससे सवाल करने की कभी जरूरत ना की। अब मेरे लिए और आपके लिए क्या हुआ है? इस्लाह के लिए, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ पढ़ूंगा, बात नहीं करूंगा। कुलसियों का खत जो पढ़ा गया, खूबसूरत हवा था, इसमें इस्लाह, आज इस्लाह का दिन है पूरी दुनिया में। काश मैं और आप अपनी अपनी इस्लाह करें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी गुफ्तगू को ठीक करें, अपने किरदार को दुरुस्त करें, अपने अंदाज को बदलें, अपने स्टाइल को बदलें, खुदा के बरगज़ीदों की तरह रहें जो खुदा को पसंदीदा लोग हैं। 12वीं आयत, तीसरा बाब, खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं। पहली बात दर्दमंदी, काश आपके दिल में दूसरों के लिए दर्द हो। मेहरबानी, एक दूसरे के साथ मेहरबान हो। फरोतनी, अपना तन झुका देना, मेहरबानी, फरोतनी, इल्म और तहम्मुल का लिबास पहनना। 2005 में मुझे मौका मिला कि मैं नेपाल जाऊँ। नेपाल के मुल्क गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ देखने के लिए जा के, और मैं हैरान हुआ, और मैं सोचने में मजबूर हुआ, मुझे सवाल करना पड़ा कि क्या बात है, इतनी अहम इमारतें, जाए घर, ये वो जमीन के बराबर बने हुए थे, लेकिन मंदिर बहुत ऊंची जगह पे था, और जिसका टॉप था, अंदर जाकर देखा कुछ भी नहीं था वहां। तो मैंने सवाल किया कि क्या हो जाए कि ये ऊंचाई में क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि मंदिर तक जाने के लिए हर शख्स ऐसे करता है, अपना तन झुका देता है,
ऊंची जगह आप चढ़े तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे झुकते जाते हैं, कोई आपको नहीं कहता, लेकिन जब आप ऊंची जगह जाएंगे तो फिर आप झुक कर जाएंगे। और मंदिर का ऊंची जगह पे बनाना सबब यह है कि हर शख्स वहां तक जाने के लिए झुक के जाए। फरोतन, अपने तन को झुका दे, मन अपनी जो मगरूरी है उसको खत्म कर दे, फरोतन बन जाए, हिल्म हो, तहम्मुल का लिबास पहने। और अगर किसी को आप सबको कह रहे हो, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी। रावलपिंडी में एक जगह है, उसका नाम है कोड़ीहाता। क्या है? जहां कोड़ के मरीज रहते हैं और लोग उनकी खिदमत करते हैं, उनको समझा बड़ा खाता था, अब भी है। अब कोड़ की बीमारी खत्म हो चुकी है वहां से। साधु उतार सिंह का नाम सुना किसी बुजुर्ग ने? इसका मतलब ये होगा मैं आप सबसे ज्यादा बुजुर्ग हूं। साधु उतार सिंह, वेरी गुड। वो आए, थैंक यू सर, थैंक यू वासी साहब। वो आए, वो खुदा का कलाम सुनाते थे बड़ी सादगी के साथ, क्योंकि साधु थे, कोड़ीहाता पिंडी के, मैं भी था। दुआ कर रहे थे, लोग शिफा पाते थे। एक लेडी तीसरे दिन भी आई, 2 दिन छोड़ के, यानी कि 2-3 दिन से लगातार आ रही थी, 2 दिन उसको शिफा नहीं मिली, तीसरे दिन फिर आई। तो साधु उतार सिंह ने कहा कि बीबी क्या बात है भाई, लोग शिफा पा के जा रहे हैं, आपको शिफा नहीं मिलती, किसी के साथ कोई नाराजगी कोई तो नहीं है, किसी ने कोई तरह नुकसान तो नहीं किया, उसको माफ कर दे। खुदा का रूह खुदा के बंदे के साथ बात कर रहा था और उस लेडी ने कहा, जी साधु जी, सारे माफ कर सकती हैं, अपनी दरानी को माफ नहीं कर सकती। उसने कहा बीबी तो दरानी को नहीं माफ कर दी तो फिर खुदा ने भी तुझे माफ नहीं करना। जब तक तो अपनी दरानी को माफ नहीं करेगी, खुदा भी तुझे माफ नहीं करेगा, तुझे शिफा नहीं मिलेगी। और जब उसके अंदर से ये बात निकली, उसने इकरार किया, इजहार किया, इतराफ किया, तो खुदा ने उसे शिफा बख्शी। ये मेरी आंखों देखा है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे दरखास्त करता रहता हूँ, कहेंगे पादी साहब रचकी हो गए, लंबाई मैसेज दे दिए, 1-2 मिनट कसूर माफ करे एक दूसरे के, खुदा आपके माफ करेगा। नहीं करेंगे, नहीं, उसी का इत्मीनान तब मिलेगा। और उसी का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, एक दूसरे को नसीहत करो, अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। कामी नहीं गई गा, हम भी गाएं, खुदा की तारीफ करें, ताज़ीम करें। और इसका फायदा क्या होगा? कलाम या काम, गुफ्तगू या काम, जो कुछ करते हो वो सब यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र गुजारो। शुक्र करना बड़ा ही है। और जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते उनके लिए चंद अल्फाज मैंने चंद दिन हुए लिखे थे कि मैं आपके साथ करूंगा। जो शुक्रगुजारी नहीं करता ना शख्स को क्या होता है? नाशुक्र होता है। क्या होता है? अब आपने देखना कि मैं और आप नाशुक्र हैं या शुक्रगुजार हैं। जो नाशुक्र गुजारी करता है, जो नाशुक्र आदमी है, औरत है, मर्द है, वो हमेशा गिला ही करता है। निशानी देख लें, सुन लें, जो नाशुक्री औरत है, नाशुक्र मर्द है, वो हमेशा गिला करता रहेगा, हमेशा शिकवा करता रहेगा, हमेशा शिकायत करता रहेगा, हमेशा मायूस ही रहेगा और उसके अंदर, उसके चेहरे पे खुशी नहीं होगी।
और जो खुश होगा वो शुक्रगुजार है, वो शिकायती नहीं होगा, वो गिले करने वाला नहीं होगा, वो बैठेगा और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेगा। मेरी ये दुआ है कि खुदा मैं और आप खुदा उन पर ईमान रखें और खुदा मुझे और आपको ना शुक्री करने के लिए बल्कि शुक्रगुजारी करने का मौका दे। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत। दुआ, कोई दुआ करें छोटी सी कलाम के लिए, इन बातों के लिए, मेरे लिए भी दुआ किया करें, मुझे जरूरत है आपकी दुआ की। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बंदा के लिए जिनके वसीला से हमने तेरे कलाम को सुना है, वो हमें अकल, दिलाई और फहम अता कर ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें। हमारे बोलचाल से, किरदार से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, क्योंकि तेरा पाक कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए जलाल है। और जब हम तेरे कलाम को अपने दिल में बसा देते हैं और हम तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करते, तो हम सबको तौफीक दे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें, मोहब्बत की रूह में अपने से दूसरों को बेहतर जानें और कभी भी नाशुक्रे ना हो, बल्कि हमेशा इस उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी को हमेशा तेरे डर और खौफ में रहते हुए हम हमेशा तेरी शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमारी दुआ का सुन, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Amen.
आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे एक नई और जिंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे तख्त के सामने आ सकते हैं। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और रुतबे के साथ तेरी मिन्नत करते हैं। हम सबको भी इन हदियों को, नजरानों को, शुक्रगुजारियों को, मनाजातों को अपने ज़िल कबूल करवा, अपने जलाल के इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी ही दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं। अपना हाथ बड़ा से की तकदीस कर, इन सब के हाथों की कमाई में बरकत है। उन बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनकी सालगिरह अपनी मना के लिए, और दूसरे सारे बच्चों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और उन लोगों के लिए जिनकी शादी की सालगिरह, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। फरीदा के लिए खास दुआ करता, अपना हाथ बढ़ा ताकि उसे जो इन्फेक्शन है जिसम के नाम से तेरी बच्ची की शिफा रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ सकते। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त हम पर जाहिर कर आइए सो अपने रूह के वसीले से इस रोटी और इस मैक की तस्दीक कर, ताकि हमारी तरफ बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से इस में बाप के पास हम सब कुछ सही। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आपने बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब हम सब पर फर्ज है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतक़ब्बिल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन स्टेप्स के लिए, कलीसिया के खानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप आज़ाद मार्शल के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, मॉडर्न चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम मदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और फरिश्तों आसमानियों के साथ मिलकर हम तेरे जिले नाम की हमको तज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सदाइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस वाकई कुदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने पोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फीदे देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाह कर कुल जहान की गुनाहों की पूरी काबिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत के तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। इन दिनों में जो लोग डेंगू का शिकार हैं उन सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर। एल्डर्स जॉन, मास्टर विलियम जेम्स, भाई नईम पर, और वो सब लोग जो कमजोरी की हालत में हैं उन सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिरना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है तो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी सिर पे हाथ नहीं लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बच्चों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही करो। जिस तरह हमारे मनोज की खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें
आए हमारे बाप जो आसमान पर है। सब बोले हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी हैं। आए हम खुदा उनकी मेज के पास आने की दुआ मिल करते हैं। ऐ रहीम खुदा, हम अपनी राष्ट्रवादी पर नहीं, तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम उस लायक भी नहीं जो तेरी मेज पर से गिरते चुने, लेकिन तू वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदा की बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह का जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बदले तुझे दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आए खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आए खुदा के बदले यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, हाथ बढ़ा कर कहे खुदा आपको इत्मीनान बख्शे, खुदा आपको बरकत दे, इत्मीनान और सलीदा फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं। जो लोग अपने आप को तैयार करके लाए हैं वो आए, खुदा की सच्ची के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ। आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ में शरीक सब खोले। आखिरी हिस्सा जो है यशायाह की तरतीब की किताब का, सब मिलकर कहें कादिर खुदा हमारे आसमानी बाप जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा ने बतौर अपने कब्जा कबूल कर लिया है और हमें इसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत दिया है और गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी जो हमारी मकबूल इबादत है हमें फजल बख्श ताकि इस जहान के हम शक्ल न बने बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से की सूरत बदलते हैं और यूँ तेरी नेक काबिल मर्जी सीखी जहाँ में इस तरह तेरी फरमाबरदारी करें कमाकर में तेरी आसमानी बादशाही तेरे सबक समेत खुशी बनाए। हमारे खुदा की सच्ची के वसीले से जो तेरे रुल्क के साथ वाहिद खुदा अब्दुल्लाबादी का और सरदर्द करता है। आमीन। हम और तब्दील और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा को। आमीन। जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप खुदा बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अज़ीज़ व रिश्तेदारों बहन भाइयों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों हमसायों खुदा के खादमों के साथ होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमाएं